this lecture, we are going to understand journal entry and how to pass journal entry logically with the rules of debit and credit. And we also have to understand the concept of debit and credit. That's the most important part. If you understand the journal entry properly, then all your chapters in accountancy will be really piece of cake for you. But because this is the foundation of this is the foundation of your accountancy. This is the primary part of accountancy. First you have to record the financial transaction, and then you classify them in structural format, and then summarize them in the final account. That means the first step in the accountancy is to form your journal entry. So how to form the journal entry? For that, you have to understand the concept of debit and credit. As we know, the accountancy says, the principle of accountancy says, whenever any transaction is recorded, the transaction will always give dual effect, and out of that effect, one should be credit and one should be debit. Now what debit credit means? See, debit in accountancy, you can say when anything increases, and credit when anything decreases, related to assets and expense. Related to assets and expense. Say, for example, if my assets are increasing, assume that if I purchase machinery, so that means there is an increase in machinery. So I will debit machinery account. Other example you can take as increase in cash. Okay, so if your cash is increasing, so you will debit cash account. अब cash increase कब होगा? कभी आपने कुछ गुड्स सेल किया रहेगा तब कैश बेसिस पे और आपको कैश मिला होगा, तो दैट विल इंक्रीज योर कैश. सो इन दैट केस ऑल्सो your cash will be debited. Okay, and increase in expense also. Say for example, if you are paying any expense, example rent, advertisement, salary, so in those cases you will debit all your expenses. Okay, and whenever any asset is decreasing, means if you selling the machinery or there is a depreciation on the machinery, so the value of machinery is getting reduced, in that case you will credit the machinery. Okay, and if your if your cash is decreasing or there is a decrease in any kind of expenditure, so you have to credit those items. So you have to keep this thing in mind. Whenever asset and expenses increases, you will debit them, and whenever asset and expenses decreases, then you will have to credit them. Okay, apart from that, there is one more important concept, because this is related to assets and expenses. Now we will discuss things related to personal account. Personal accounts means it is related to natural person or artificial person. Whenever any person name or artificial person name is given in the question, that means that particular account will belongs to personal account. So the rule for the personal account says debit the receiver, credit the giver. Okay, so the golden rule of accountancy is very important to understand the concept of debit and credit, and to apply and to derive the journal entry logically. Okay, so the rule for personal account is debit the receiver, credit the giver, and personal account related to natural person and artificial person. Okay, now the real account related to asset. So whenever asset comes in, okay, and whenever assets goes out, that two thing you have to keep in mind. If the assets is coming in, then you will debit that account. If the asset is going out, then you will credit that account. Now what is the meaning of it is come in or goes out? कम इन मीन्स अगर आपके पास बिजनेस में एसेट आ रहा है, से फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन द मशीनरी. सो परचेज बोलो या इंक्रीज बोलो या कम्स इन बोलो, all means the same. So if the asset is coming in,
that means there is an increase in the asset, so it will be debited. Whenever assets come in, that means there is an increase in the asset, that means you have to debit that particular asset. Whenever assets goes out stand for decrease in the asset. ठीक है, एसेट आप सेल कर रहे हो या एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, सो इन दैट केस यू विल credit the asset account. Okay, then the last account, that is nominal account. Nominal account says debit all expenses and losses, credit all income and gains. Now debit all expense and losses, see जब भी there is an expense, okay, and losses, you have to debit that. And अभी हमने पढ़ा कि कभी भी expense में increase हो रहा है, yeah, that means you are paying any kind of expense, so you have to debit the account, debit that particular account. Say for example you are making payment for rent, so you will debit the rent account. Any kind of losses is also there, say for example bad debts, so अगर bad debts भी आया तो आपको उसको क्या करना है, डेबिट करना है. And it says credit all income and gain. If any kind of income is there in the transaction, then you have to credit it. So these are the golden rules of accountancy, and with the help of this rule we will derive the journal entry. If you understand this rule, then making journal entry will be very easy for you. And because it is a foundation of account, it is a primary part of, it is a primary part of accountancy. So it is the foundation and a primary part of accountancy. So in order to master the accountancy, okay, and in order to understand the accountancy in a better way, you have to remember these rules of accountancy. And this is called golden rules of accountancy. Now how to apply these rules and derive the journal entry, we will learn that. See, say for example, if they give you a transaction like purchase goods worth rupees 10,000. So here you can see there are two accounts which you have, which you can find. One is purchase goods worth rupees 10,000. So out of this, you can see the account name purchase is there. Okay, so purchase is a type of account. So you can easily find out that it will be one of my account. You have to find at least minimum at least two accounts. Okay, now second account is not given. Purchase good is one and the same. Okay, so you cannot take purchase differently and goods differently. Purchase goods is one and the same. So you will not write goods account, you will write purchase account. So after that you will try to find out other account. So nothing is mentioned, but they are saying ki that purchases of worth rupees 10,000. Okay, that means you are paying 10,000 rupees to purchase those goods. So in absence of information, further information, we will assume that this transaction is on the cash basis. Okay, so now I got two accounts, that is first is purchase and second is cash account, because you are paying the cash. Now cash is a form of purchase is a form of expense, because when you are purchasing anything, it is a kind of your expense because you are paying for it. So expense always come under nominal account. Okay, we have already read the golden rules of accountancy, and as we can see, the expense comes under nominal account. Okay, and the cash comes under real account because it is a type of asset. So cash comes under real account and expense comes under nominal account. So in this case for expense, I will apply rule of nominal account, and in case of cash, I will apply rule of real account. So rule of nominal account says debit all expense and losses. Okay, debit all expense and losses. So मेरा जो expense, जो मेरा purchase है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, debit करना पड़ेगा. Okay, and my cash, when I purchase anything, my cash will goes out, and the real account says debit what comes in and credit what goes out.
तो कैश जा रहा है आपके पास से, इट इज गोइंग आउट। सो यहाँ पे जब आपके पास से कैश जा रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल आई हैव टू credit my cash account. This is the first way of understanding this. The other way, as I told you, whenever expenses increases you have to debit that. तो आपका यहाँ पे परचेज कर रहे हो ना आप, तो आपका एक्सपेंस डेफिनेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी एक्सपेंस आएगा तो आपको उसको क्या करना है, डेबिट करना है। एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर एसेट डिक्रीजेस, ठीक है, कैश आपका एसेट है, अब आप जब परचेज कर रहे हो तो आपका पैसा कम हो जाएगा ना, आपका कैश कम हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे। अगर आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्लियरली आपको नहीं याद आता है, सो यू कैन अप्लाई दिस रूल दैट व्हेनेवर एक्सपेंस increases you have to debit it, and whenever expenses reduces you have to credit it. Same applies to asset. Whenever asset increases you have to debit it, whenever asset decreases you have to credit it. Okay, so मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, दोनों फॉर्मेट में। फर्स्ट फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी अप्लाई करके आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एंड सेकेंड उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप किस तरीके से आप आपका इंक्रीज एसेट्स एंड एक्सपेंस, एसेट एंड एक्सप्रेस, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज और डिक्रीज के लॉ को आप पुट अप करके फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द शॉर्ट मेथड, बट आई सजेस्ट यू टू फॉलो द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी मेथड, बिकॉज अगर आपको एक बार गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्लियर हो गया तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट रूल, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन योर। सबसे पहले आपको डेबिट वाला आइटम लिखना होता है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त। सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज मेरा डेबिट था, सो आई विल राइट परचेज अकाउंट। अब अकाउंट्स के लिए जब आप लिख रहे हो, सो आपको किस तरीके से वो अकाउंट्स लिखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ परचेज लिख दिया तो आपका हो गया, नो, इट विल बी रॉन्ग। यू कैन नॉट राइट डाउन लाइक दिस। अगर आप वैसे लिख रहे हो तो इट विल बी मिस्टेक, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट इट रॉन्ग। कीप दिस थिंग इन माइंड। सो आपको लिखना कैसे है, first write your debit account. Okay, so here my debit is purchase, so I will write purchase account debit. So for debit I will use the short form DR, D capital and R small. And while you are writing account, you will not write full account word, you will write capital A/C. ओके, अगर आप अदर फॉर्म यूज करते हो अदर देन दिस इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग। अगर आप कुछ और पैटर्न से लिखते हो यू विल गेट इट रॉन्ग। कीप दिस थिंग इन माइंड। आफ्टर राइटिंग डेबिट एंट्री, डेबिट साइड, डेबिट एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यू विल रिकॉर्ड क्रेडिट expect. So credit expect record करने के लिए first you will use the word to, because to indicates credit transaction. So now I have written to, then I will write my account name, that is cash. So cash account A/small c, capital A/small c. So this way I will write my journal entry. In this case, if you are writing anything else, say for example, if you are writing ACC, if you are writing ACC, or if you are writing ACC, or if you are writing A/CC, और यू आर राइटिंग डेबिट के जगह आप लिख रहे हो DR, और आप टू के जगह लिख रहे हो क्रेडिट, सो ये सारी जो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ऑल दिस विल बी कंसीडर एज रॉन्ग। ठीक है, सो आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हाउ टू राइट द जर्नल एंट्री। एंड एज यू कैन सी, आफ्टर राइटिंग परचेज अकाउंट डेबिट, जब मैंने क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, मैंने डायरेक्टली परचेज के नीचे से स्टार्ट नहीं किया। आई हैव लेफ्ट सम स्पेस एंड देन आई रोट
to cash account. This is the pattern of writing your journal entry, and you have to stick to this pattern only. Okay, so this is the rule of writing your journal entry. आपका journal entry in this transaction will be purchase account debit to cash account. In the next transaction, what they are giving you, see, purchase goods worth rupees 10,000 from Rohit. अब यहाँ पे किससे गुड्स खरीदा है वो आपको मेंशन कर दिया है। एंड सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट मिल गया, दैट इज परचेज। ठीक है, सो परचेज तो आपको पता है कि परचेज एक्सपेंस है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे अभी पहले वाले ट्रांजैक्शन में मैंने जो 10,000 था उसको कंसीडर करके कैश लिखा था। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। बट इन दिस ट्रांजैक्शन दे आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट द गुड्स हैज बीन परचेज फ्रॉम रोहित। सो यहाँ पे आप हिडन वर्ड नहीं लोगे, यहाँ पे आप जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है आप वो फॉलो करोगे। सो यहाँ पे बोल रहा है कि गुड्स किससे परचेज किया है? रोहित से परचेज किया है। सो आप जिससे गुड्स परचेज किया है उसके अकाउंट को कंसीडर करोगे, ना कि कैश अकाउंट को। ठीक है, सो यहाँ पे परचेज बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस इट विल गो टू नॉमिनल अकाउंट। सो आपने यहाँ पे लिख दिया परचेज नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद रोहित इज अ नेचुरल पर्सन। सो यहाँ पे रोहित कहाँ चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अब यानी रोहित, जब आप रोहित के बारे में सोच रहे हो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। जब आप परचेज के बारे में सोच रहे हो आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। इसलिए ये जो रूल्स है गोल्डन अकाउंट रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी वो आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी difficult for you to cope up with the journal entry. Now नॉमिनल दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में परचेज क्या है? हमारा एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस हमारा क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हमने यहाँ डेबिट लिख दिया। अब ना रोहित इज अ पर्सनल अकाउंट। सो एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों डेबिट नहीं हो सकता, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकता। अगर एक डेबिट तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो क्रेडिट हमने लिखा है वो आंसर राइट है या नहीं। सो देखो, रोहित इज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, एंड हम गुड्स रोहित से परचेज कर रहे हैं। सो रोहित इज अ गिवर। तो पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी गिवर क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए आपने यहाँ पे रोहित को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सो आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, दैट विल बी योर journal entry. Purchase goods worth rupees 10,000 from Rohit on cash. ओके, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन मेंशन किया है। नाउ सी, व्हेनेवर कैश इज गिवन, ठीक है, पहले तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया? परचेज अकाउंट मिल गया। ठीक है, सो आपने परचेज लिख दिया, उसके नीचे लिखा है एक्सपेंस एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ यहाँ पे अभी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दे रही है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम रोहित ऑन कैश। अब यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कैश। ना आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में ये क्लियरली बता दिया कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि वो कैश ट्रांजैक्शन है, तो किससे परचेज किया वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ आप रोहित के अकाउंट को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि अब वो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बन गया। आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आपने गुड्स परचेज किया और कैश दिया। ठीक है, सो यहाँ पे आपने कैश लिख दिया। सो कैश हमारा रियल अकाउंट है, सो हमने कैश एंड रियल अकाउंट लिख दिया। परचेज हमेशा एक्सपेंस होता है एंड नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो यहाँ हमने लिख दिया डेबिट।
ओके, फर्स्ट इज डेबिट, सो ऑटोमेटिकली सेकेंड विल बी क्रेडिट। फिर भी हम हमारा आंसर चेक करते हैं। देखो, जब परचेज करोगे आपके पास से कैश जाएगा, पैसा जाएगा, सो रियल्स अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश जा रहा है आपके पास से, ठीक है, दैट इज वाई कैश इज क्रेडिटेड। सो हमारा जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, दिस विल बी आर जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री को अभी तक हमने फॉर्मेट में नहीं रखा है, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे डिराइव करना है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड में हम देखेंगे कि हम इसको फॉर्मेट में कैसे यूज करेंगे। Purchase goods from Garena on cash rupees 10,000 at 10% cash discount. Okay, cash discount कब मिलता है, जब अगर बायर गुड्स कैश बेसिस पे परचेस कर रहा है, यानी कैश देके पे कर रहा है, तो जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, एंड कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट भी करते हैं और हमारी जर्नल एंट्री बनाते वक्त हम उसको शो भी करते हैं। सो यहाँ पे देखो हम कैसे हमारे ट्रांजैक्शन को हमारे ट्रांजैक्शन को डिफरेंट स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके हम जर्नल एंट्री डिवाइड करेंगे, हम जर्नल एंट्री डिराइव करेंगे। परचेज गुड्स, ठीक है, सो परचेज मुझे एक आइटम मिल गया, उसके बाद क्या दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन कैश, क्लियरली मेंशन है ऑन कैश, तो सेकेंड आइटम जो मुझे मिल गया दैट इज माय कैश at 10% cash discount. So my third item is cash discount. अब इसको हमें जर्नल एंट्री में कैसे लिखना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये अकाउंट का किससे बिलोंग करता है, परचेज एक्सपेंस है, सो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। कैश एसेट्स है, सो इट विल गोस टू रियल अकाउंट। नाउ कैश डिस्काउंट, आपको कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है डिस्काउंट, सो इट इज अ काइंड ऑफ गेन फॉर यू, सो ये हमारा कहाँ चला गया, नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज इट इज अ गेन। नाउ परचेज इज अ परचेज एक्सपेंस है ना, सो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में, सो आपने डेबिट लिख दिया। अभी जब भी कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, सो आपका जो कैश है वो जाएगा, ठीक है, सो बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड because your assets is going out. Now here your cash discount, सबसे पहले आपको कैश डिस्काउंट आपका क्या है, कैश डिस्काउंट will be credited. Why it is credited? Because it is a type of gain. ओके, नाउ कैश डिस्काउंट आपका जो कैश डिस्काउंट है वो क्रेडिट हुआ। अब आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करोगे, आपका अमाउंट था 10,000 रुपीज, ओके, इस पे आपको 10% आपको कैश डिस्काउंट बोला है, सो जब आप 10% कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1,000 रुपीज एज योर कैश डिस्काउंट। ठीक, सो यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो कि आपको एक डेबिट मिला है एंड 2 क्रेडिट मिला है। ओके, सो सबसे पहले हम डेबिट आइटम लिखेंगे एंड हियर द माय डेबिट आइटम इज परचेज, सो आई एम राइटिंग डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट। अब टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज था जिसमें से 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी रियलिटी में हमने करीना को कितना पे किया रहेगा, 9,000 रुपीज, ठीक है। सो यहाँ पे कैश में आपको लिखना है 9,000 रुपीज एंड वो कैसे मिला, 10,000 माइनस 1,000 रुपीज, 10,000 हमको पे करना था जिसमें से 1,000 का हमको डिस्काउंट मिला है, सो हम कितना पे कर रहे हैं, 9,000 रुपीज एंड टू डिस्काउंट रिसीव is 1,000. So मेरा जर्नल एंट्री हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000. Purchase goods from Karina on credit rupees 10,000 at 10% rate discount. Now we will see how to derive journal entry from this. सबसे पहले परचेज दिया हुआ है, सो परचेज से आपका एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। नाउ फ्रॉम करीना, ठीक है, तो सेकंड क्या अकाउंट मिल जाएगा मुझे, करीना अकाउंट। फर्स्ट मुझे क्या मिला था, परचेज, सेकंड आई एम गेटिंग करीना अकाउंट, सो करीना इज अ नेचुरल पर्सन, इट विल गो टू पर्सनल अकाउंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब भी
कोई भी पर्सन अगर बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, एंड जब सेलर उसको ज्यादा गुड्स परचेज करने के लिए जो डिस्काउंट देता है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. इट इज गिवन in order when the buyer purchase goods on the in the bulk quantity. Okay, but this discount is calculated, but it is never mentioned in the journal entry. यानी हम इसको कैलकुलेट तो करेंगे, बट इसको हम जर्नल एंट्री में मेंशन नहीं करते हैं. ओके, सो नाउ परचेज हमारा डेबिट में चला जाएगा. करीना नेचुरल पर्सन है एंड करीना इज द गिवर ऑफ दैट गुड, सो डेबिट क्रेडिट द गिवर. सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले 10,000 रुपीज पे 10% आपको आपका ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. तो जब आप 10% कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 1,000 रुपीज. सो अब ये 1,000 को अब क्या करोगे, 10,000 जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये 1,000 को माइनस कर दोगे. सो आपको अभी टोटल अमाउंट कितना मिल गया, 9,000 रुपीज. तो जब आप जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखोगे, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10,000 रुपीज, यू विल राइट 9,000 रुपीज. बट दिस डिस्काउंट अमाउंट, दैट 1,000 you will not show in the journal entry because it is a trade discount. अगर ये कैश डिस्काउंट होता तो आप इसको मेंशन कर देते, लेकिन because it is a trade discount, that is why you will not mention this. This is the main important transaction. See guys, before earlier GST was not there, but GST, first of all, let's understand the concept of GST. GST stand for goods and service tax. Before GST, every state had variety of taxes. मतलब हर स्टेट अपना अपना अलग अलग टैक्सेस अप्लाई करता था. बट आफ्टर GST गवर्नमेंट ने बोला ये एक ही टैक्स सब स्टेट के लिए रहेगा. ठीक है, सो टैक्सेस जितने भी टैक्सेस है, ठीक है, उनको एक सिंगल फॉर्म टैक्स में कन्वर्ट किया, दैट इज GST. ओके, GST वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2017. ओके, इसके पहले आपने जो ट्रांजैक्शन देखा, जैसे कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हो, सो वहां पे आप देखते हो कि GST वर्ड नहीं था. लेकिन अभी कोई भी आप गुड्स परचेज करते हो, कोई भी एसेट्स परचेज करते हो, तो आपको खुद मालूम है कि आप वहां पे GST पे करते हो. सो GST जो है ये गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, एंड अभी सिमिलरली हमको ये GST किस तरीके से हमको हमारे जर्नल एंट्री पे इम्पैक्ट करेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो आपने नॉर्मल परचेज का ट्रांजैक्शन आपने देखा. नाउ अभी हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में GST दिया हुआ है, सो वो हमारे ट्रांजैक्शन को कैसे इफेक्ट करेगा और हमारा जो जर्नल एंट्री है वो कैसे चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दैट वी गोइंग टू सी इन दिस क्वेश्चन. सी व्हाट इज गिवन, परचेज लैपटॉप. प्रीवियस क्वेश्चन में परचेज गुड्स दिया हुआ था. जब भी गुड्स दिया हुआ होता है तभी हम वर्ड परचेज लेते हैं, लेकिन परचेज अगर कोई भी फिक्स एसेट हो तो हम परचेज की बजाय वो फिक्स एसेट का नाम लिखते हैं. सो यहाँ पे परचेज गुड्स नहीं है, बल्कि क्या दिया हुआ है, परचेज लैपटॉप. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वर्ड परचेज, आई विल टेक द नेम ऑफ दैट एसेट. ये आपको यहाँ ध्यान रखना है. सो परचेज लैपटॉप. सो मुझे एक फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन मेरा मिला, सॉरी जो फर्स्ट मुझे एंट्री मिला है, अकाउंट मिला है, वो लैपटॉप का मिला है. एंड लैपटॉप क्या है, इट इज एन एसेट. सो ये एसेट है तो इसलिए वो कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में. ठीक है, अभी हम इतना देखते हैं. आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, परचेज लैपटॉप from Jalaram and Company worth rupees 50,000 at the rate of 18
18% GST। नाउ जब भी आपको GST क्वेश्चन में दे रहा है, सो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि वो आपने परचेज के ऊपर GST है या आपका वो सेल के ऊपर GST है। सो एज पर दिस क्वेश्चन, हियर इट इज योर परचेज, यू आर परचेजिंग द गुड्स। तो जब भी परचेज होता है, सो आपका GST इनपुट होता है, यानी GST आपके परचेज अमाउंट में इंक्लूडेड करते हैं उन लोग। सो यहाँ पे ये परचेज जो GST है वो आपका इनपुट GST होगा। एंड GST दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वन इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेकेंड इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जो भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका GST का अमाउंट 10,000 रुपीज आता है, सो वो 10,000 में से 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एंड 5,000 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा परचेज के टाइम इनपुट CGST एंड इनपुट SGST इक्वली ये डिवाइड होता है। एंड जब भी इनपुट GST रहेगा, सो वो हमेशा अकाउंट आपका डेबिट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दे रहा है, परचेज लैपटॉप। सो लैपटॉप का हमने बाइफिकेशन कर लिया। देन हमें सेकेंड GST मिला था। थर्ड हमें मिल रहा है बाय चेक, द अमाउंट इज पेड बाय चेक। ठीक है, सो अभी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि वहां कैश से पे कर रहा था, बट ये ट्रांजैक्शन में ही इज क्लियरली सेइंग दिस ट्रांजैक्शन इट इज क्लियरली सेइंग दैट इज इट इज पेड बाय चेक। एंड चेक जो है वो हमारा कहाँ यूज होता है, बैंक में यूज होता है। यानी अगर आपने कुछ परचेज किया, आपने जो सेकेंड पार्टी है जो आप जिससे खरीद रहे हो, आपके सेलर को आपने चेक दिया, तो सेलर क्या करेगा, वो चेक ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, एंड फिर बैंक उसको पैसा देगी। करेक्ट, सो इन दैट केस द बैंक विल बी द गिवर। ओके, द बैंक विल बी द गिवर, क्योंकि पैसा उसको कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंक लिखेंगे, और बैंक कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए हमने इसको पर्सनल अकाउंट लिख दिया। एंड बिकॉज बैंक उसको पैसा देगी, राइट, बिकॉज वो जाएगा बैंक के पास, चेक देगा या अपने अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट करेगा, तो एक बैंक से दूसरे उसके जो बायर है वो उसको अपने अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। यानी सेलर को पैसा बैंक देगी फाइनली, चाहे उसके अकाउंट में दे या ऑन काउंटर दे। ठीक है, सो बैंक यहाँ पे गिवर है, इसलिए ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। देखो आपने लैपटॉप परचेज किया है, एंड लैपटॉप क्या है, एसेट है, वो रियल अकाउंट है, और यहाँ पे लैपटॉप इज कमिंग इन टू द बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। सो यहाँ पे आपने लैपटॉप को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा था 3 कि हमको कौन से 3 अकाउंट्स मिले। ठीक है, अब ये 3 अकाउंट के बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, GST कैलकुलेट करोगे। तो GST आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपका लैपटॉप का अमाउंट कितना था, 50,000 था। ये 50,000 पे आपको GST कितना बोल रहा है, दे आर सेइंग 18% GST। सो 18% आपको कैलकुलेट करना है। सो वो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। अब इस 9,000 को आपको एक CGST में और एक SGST में डिवाइड करना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितना है, 50,000, उसमें से 18% दिया था ना, तो 9% CGST को जाएगा एंड 9% SGST को जाएगा। सो ये 18 पूरा आपका 9,000 आया था, तो इस तरीके से 4,500 आपने CGST को दिया एंड 4,500 आपने SGST को दिया। ठीक है, यानी अभी आपका टोटल अमाउंट बैंक उसको कितना पे करेगी, 59,000 रुपीज। सो यहाँ पे देखो आप ट्रांजैक्शन, अभी यहाँ जो चीजें डेबिट में हम वो डेबिट में लिखेंगे, जो चीजें क्रेडिट में हम वो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ लैपटॉप डेबिट में है, सो मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। लैपटॉप कितने का था, 50,000 का, तो मैंने लिख दिया 50,000। उस पे मैंने इनपुट CGST कितना पे किया,
for 4,500. So मैंने 4,500 लिख दिया. SGST कितना पे किया? 4,500. ठीक है. टोटल बैंक पैसा कितना दे रही है? तो ये तीनों चीज देगी ना बैंक. तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 59,000 rupees. So in this way you going to create your transaction. So your final you are in this way you are going to create your journal entry. So your final journal entry for this transaction is laptop account debit 50,000, input CGST account debit 4,500, input SGST account debit 4,500, to bank account. To bank हमने क्यों लिखा है? Because check is mentioned in the question. That is why. अगर check mention नहीं होता था और कैश देता तो हम कैश लिखते, बट चेक दिया हुआ है इसलिए हमने बैंक लिखा हुआ है. एंड ये तीनों अमाउंट जो है उसका टोटल आप करोगे, जैसे कि आप यहाँ वर्किंग में देख सकते हो. सो इस तरीके से आपको 59,000 रुपीज पे करना है. सो यहाँ पे टू बैंक यू विल राइट 59,000 rupees. This transaction purchase goods for cash rupees 50,000 at 18% SGST and less 10% cash discount. Now जब भी आपको बड़ा ट्रांजैक्शन देता है तो आपको उस ट्रांजैक्शन को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना है. सो यू विल it will be easier for you to understand. So see how I have divided this transaction. सबसे पहले क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स. तो यहाँ पे ही मुझे एक आइटम मिल गया, दैट इज माय purchase. Okay, and purchase is a kind of expense and it comes under nominal account. Then next is purchase good for cash. Second item मुझे क्या मिल गया? Cash. Cash is a kind of asset and it belongs to real account. Then third, purchase goods for cash rupees 50,000 and at 18% GST because purchase है इसलिए हमारा GST क्या हो जाएगा? Input GST हो जाएगा. And input GST में I will write input CGST and input SGST. Okay, and because it is input GST it will be debited. Okay, and last में दिया हुआ है less 10% cash discount. Cash discount is a discount which is given to the buyer when he purchase the goods on cash basis. यानी जब भी पर्सन कैश बेसिस पे कैश पे करके गुड्स खरीदता है, सो उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ गेन, क्योंकि परचेज करते वक्त आपको मिला है तो इट विल बी द गेन फॉर यू, गेन फॉर द बिजनेस. सो गेन विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमको इन टोटल कितने आइटम्स मिल गए हैं? 4 आइटम्स मिल गए हैं. ठीक है. सो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा अमाउंट डेबिट, कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा और कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा. अभी परचेज इज एक्सपेंस है इसलिए ये कहाँ चला गया? डेबिट में चला गया. अब एसेट्स कैश जो हमारा है इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो आपका कैश जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल कम अंडर क्रेडिट साइड. देन जीएसटी परचेज करते वक्त आपने जीएसटी पे किया है, सो इट विल बी द इनपुट जीएसटी, सो इट विल कम अंडर डेबिट साइड. देन द लास्ट कैश डिस्काउंट. कैश अब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है कि आप कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे. एंड नाउ कैश डिस्काउंट यहाँ पे आपका गेन है बिकॉज आपको मिला है, सो इट विल गो टू क्रेडिट. सो एज यू कैन सी देयर आर 2 डेबिट्स एंड 2 credit. Okay, now first we will see how we will calculate the amount for each of these item. Okay, now cost of the goods. Cost of goods is nothing but my purchase. Purchase मेरा कितना था? 50,000 rupees का मैंने purchase किया था. Okay, in that purchase I have paid, on that purchase I have paid 18% GST. 18% GST अगर आप 50,000 पे कैलकुलेट करोगे सो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 9,000 रुपीज. उस 9,000 को आपको CGST एंड SGST में इक्वली डिवाइड करना है. सो आपने डिवाइड कर दिया एंड जिससे आपको मिल गया 4,500 फॉर CGST एंड 4,500 फॉर SGST, जिससे आपका टोटल
टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितना हो गया 59,000 rupees. Now on that 59,000 rupees, this 59,000 rupees you were supposed to pay to your सेलर, ओके, बट आपको क्या मिला है, आपको 10% कैश डिस्काउंट मिला है. अब ये 10% कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, ये 59,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको कैश डिस्काउंट जीएसटी के साथ दे रहा है तो जीएसटी कैलकुलेट करने के पहले का जो अमाउंट है उसमें आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे. सो यहाँ पे जीएसटी के पहले मेरे गुड्स का वैल्यू कितना था, मैंने जो कितने का गुड्स खरीदा था 50,000 रुपीज का, मेरा गुड्स का जो कॉस्ट था वो 50,000 था. सो उस 50,000 पे आई विल कैलकुलेट 10%. सो आपको 10% 50,000 पे जब आप कैलकुलेट करोगे आपको अमाउंट मिलेगा 5,000, यानी आपको टोटल डिस्काउंट 5,000 रुपीज का मिला है. सो आउट ऑफ 59,000 you were supposed to pay out of you were supposed to pay 59,000 rupees, but from that 59,000 you are getting 5,000 as a cash discount. Okay, discount received. So अभी आपको टोटल जो कैश जो टोटल कैश आपको पे करना है, यहाँ पे मैंने रिसीव लिख दिया है, इट शुड बी पेड. तो जो टोटल आपको कैश पे करना है that will be your 54,000 rupees. ठीक है, so it should be your total cash paid. Okay? अब इस टोटल कैश पेड को हम किस तरीके से रखेंगे वो हमें देखना है. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आई विल राइट माय जर्नल एंट्री. परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट में है और इनपुट जीएसटी डेबिट में है. सो मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट दैट वाज 50,000 and then I have returned input CGST and SGST 4,500 4,500. ओके, सो अब ये मेरी डेबिट की एंट्रीज हो गई. अब मुझे क्रेडिट एंट्रीज में लिखना है. अब एक्चुअल में मैं आप बाय सेलर को कितना अमाउंट पे कर रहे हो 54,000 रुपीज एंड आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 5,000 rupees. So your debit is equal to your credit. So in this way you will show your journal entry for this particular transaction. तो इस ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि अगर आप कुछ परचेज करते हो और उस पे आपका जीएसटी भी है प्लस कैश डिस्काउंट भी है तो आप कैश कितना पे करोगे. ठीक है, एंड आपका डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा. ओके, दैट इज द मेन पॉइंट. Goods sold worth rupees 30,000. Now sold, so sold is a past tense of sale. तो जब भी आप कोई गुड सेल कर रहे हो तो इट इज अ फॉर्म ऑफ योर इनकम एंड इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है. सो फर्स्ट आइटम आपको मिल गया सेल दैट इज योर इनकम worth rupees 30,000. So यहाँ पे भी the question is silent whether it is a cash transaction or credit transaction. So whenever question is silent and about the type of transaction and if they have not given you any further information, so आपको क्या करना है, आपको इस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करके चलना है. तो सेकेंड जो हमें आइटम मिल जाएगा दैट विल बी योर कैश. ओके, एंड कैश बिलोंग्स टू रियल अकाउंट. ना जब भी आप कुछ चीज सेल कर रहे हो ये तो वो आपका क्या रहेगा इनकम एंड नॉमिनल अकाउंट में इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है. इसलिए आपने जो सेल है उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है. जब भी आप सेल करोगे आपके पास कैश आएगा, द कैश विल कम्स इन एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हेनेवर एनी एसेट इज कमिंग इन यू हैव टू शो इट ऑन द डेबिट साइड. इसलिए आपने कैश कहाँ लिखा है डेबिट साइड में. सो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Now sold goods worth rupees 30,000 to buyer. ओके, तो से हमारा जो सेल्स है वो सबसे पहले जो हमारा सेल्स है वो हमारा क्या है इनकम है. तो सबसे पहला आइटम हमको क्या मिल गया सेल अकाउंट.
ओके। सेल गुड्स है तो जब भी आपको गुड्स देगा तो आपको गुड्स के बजाय जो परचेज या जो भी सेल हुआ है वो मेंशन करना है ना। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू पायल, यहाँ पे आपने कुछ पायल को बेचा है तो आप पायल अकाउंट को कंसीडर करोगे। आप जो 30,000 का हिडन वर्ड कैश है उसको मेंशन नहीं करोगे, आप पायल को करोगे बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, नाउ सेल इज अ फॉर्म ऑफ इनकम एंड इट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है, इसलिए आपने सेल को कहाँ लिख दिया, क्रेडिट। ये आपको याद रखना है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है एंड सेल हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है एंड सेल हमेशा इनकम होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, और यहाँ पे पायल इज द रिसीवर ऑफ दैट गुड, क्योंकि यू आर सेलिंग गुड्स टू द पायल। सो पायल इज अ नेचुरल पर्सन। ओके, इट विल गोज टू पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। सो आपको पायल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 30,000 on the debit side, 30,000 on the credit side. Sold car for 1 lakh rupees at 28% GST and amount received by check. इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सोल्ड कार दिया हुआ है, अगर गुड्स देता तो हम सेल को मार्क करते, लेकिन बिकॉज यहाँ पे कार दिया है, फिक्स एसेट दिया है, सो जब भी फिक्स एसेट अगर आपको ट्रांजैक्शन में देगा तो आपको एसेट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कार दे दिया है, सो कार इज अ टाइप ऑफ एसेट एंड इट विल गोज टू रियल अकाउंट। फर्दर 28% GST, जब भी आप कोई चीज सेल कर रहे हो और उसमें GST है, that GST will be called as output GST, and that GST will be divided into two parts, that is output CGST and output SGST. Okay, in equally amount में वो डिवाइड करेंगे एंड आउटपुट GST हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, नाउ अमाउंट रिसीव बाय चेक, चेक से रिसीव हुआ है इसलिए हमें क्या, यानी हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, बैंक से मिलेंगे एंड बैंक कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड बैंक विल बी द गिवर। ओके, बैंक विल बी द रिसीवर, बिकॉज यहाँ पे सेल हुआ है इसलिए पैसे बैंक में आने वाले, सो बैंक विल बी द रिसीवर। सो बैंक को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को लिखने के पहले, हमारे जर्नल एंट्री को लिखने के पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी कार हमने कितने का लिया था वो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल जो कार है वो इसका एक्चुअल कार हमने कितने में सेल किया। ठीक है, एंड वो कार का वैल्यू कितना था। सो एज यू कैन सी कॉस्ट ऑफ द कार वाज 1 लाख रुपीज, ऑन दैट यू हैव एडेड GST 28%। सो जब आप 28% 1 लाख पे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 28,000 रुपीज। दैट 28,000 रुपीज यू हैव टू डिवाइड equally into CGST and SGST. So इस तरीके से आपको जो अमाउंट मिल रहा है for CGST is 14,000, for SGST 14,000 रुपीज। अब इसको हम आप ऐड करोगे, सो आपको जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी 1,28,000 rupees, which includes your cost of car plus the amount of GST. So आपको बैंक में टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1,28,000 रुपीज। सो आपने बैंक अकाउंट में क्या लिख दिया, 1,28,000 रुपीज। नाउ एक्चुअल में आपका कार कितने का था, 1 लाख रुपीज। सो यहाँ पे मैंने मोटर कार मेंशन किया है। आपको अगर क्वेश्चन में मोटर कार दिया है तो आपको मोटर कार लिखना है, अगर सिर्फ कार दिया है सो आपको कार लिखना है। सो एज पर दिस ट्रांजैक्शन द मोटर कार शुड नॉट बी देयर शुड बी ओनली कार। सो आपको सेकेंड लिखना है टू कार अकाउंट दैट इज 1 लाख रुपीज। आपका आउटपुट GST एंड आउटपुट SGST आपको मेंशन कर देना है। सो हमारा ट्रांजैक्शन आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,000 टू कार अकाउंट 1 लाख रुपीज, टू आउटपुट CGST 14,000 रुपीज, टू आउटपुट SGST 14,000 रुपीज।
paid rent rupees 5,000 rupees. Now certain transaction में आपको कुछ जो आइटम्स है उसे वो हिडन रहेंगे, आपको उसे डिराइव करना पड़ेगा। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है पेड रेंट, ओके, सो आपको रेंट एक अमाउंट मिल गया। अभी यहाँ पे सेकेंड आपको कैसे पता चलेगा? ना व्हेन यू आर पेइंग तो डेफिनेटली योर कैश विल गो आउट। सो ये पेड के पीछे कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? दैट इज योर कैश। तो कैश आपका कितना गया? 5,000 रुपीज। तो यहाँ रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए आपने इसको नॉमिनल अकाउंट में लिख दिया। एंड आपका कैश सेकेंड आपका कैश है, सो कैश रियल अकाउंट में लिख दिया। रेंट आपका एक्सपेंस है, दैट इज वाई आपने इसको डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमेशा एक्सपेंस डेबिट साइड में आता है। एंड कैश जो है आपका, वो कैश जब आप पे कर रहे हो तो ना कैश इज गोइंग आउट एंड रियल अकाउंट से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए आपने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सो आपका जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 on debit side, 5,000 on credit side. Started business with cash rupees 25,000। यहाँ पे आपको ये ट्रांजैक्शन में आप इजीली एक आइटम आपको जो विजिबल है दैट इज कैश, तो आपने कैश लिख दिया। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेसमैन सर्टेन अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो ये याद रखना है आपको, कभी भी अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या अगर आपको बोल रहा है था बिजनेस कमेंस बिजनेस, सो यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करेगा एंड दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। सो यहाँ पे हमें हिडन वर्ड क्या मिला है? कैपिटल। कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। अब बिजनेस में जब कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो बिजनेस में कैपिटल कैश जो है वो आ रहा है, द कैश इज कमिंग इन एंड इफ द कैश इज कमिंग इन इट विल बी डेबिटेड। सो हमारा कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। सो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरा जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Goods costing rupees 7,000 withdrawn for personal use। यहाँ पे आपका एक आइटम जो है वो गुड्स है, ठीक है। तो गुड्स विड्रॉ किया है बिजनेसमैन ने फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में हमारा जो वर्ड हिडन है दैट इज ड्रॉइंग, ठीक है। जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कोई भी गुड्स या कैश विड्रॉ करता है दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। बिजनेस से गुड्स जो हमारा है गुड्स वो इट इज अ टाइप ऑफ एसेट, सो इट विल गोज टू रियल अकाउंट। अब जब आपने गुड्स रियल अकाउंट में लिखा, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि वेदर द गुड्स इज कमिंग इन or it is going out। So here the goods is going out from the business and when it is going out from the business it will be credited, okay, and the drawing is always debited in nature, okay। So मेरा journal entry क्या हो जाएगा? drawing account debit to goods account, 7,000 on the debit side, 7,000 on the credit side। अभी तक हमने देखा कि हमने जर्नल एंट्री कैसे डिराइव करना है, ओके। विद ट्रांजैक्शन से हमें जर्नल एंट्री कैसे डिराइव करना है। वो जर्नल एंट्री लिखने के लिए हमें जर्नल एंट्री को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। सबसे पहले आप लिखोगे ऑन द टॉप इन द बुक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, और जो जिसका भी अब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बिजनेस या बिजनेसमैन का नेम, ठीक है। सो वो आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ से फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, ओके। देन जर्नल एंट्री, यहाँ पे ये फॉर्मेट इट इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना है डेट। अगर डेट क्वेश्चन में मेंशन की है तो आप डेट के कॉलम में डेट लिख दोगे। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है सो यू विल कीप दिस कॉलम ब्लैंक, बट आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स एंड देन इट इज LF स्टैंड फॉर लेजर फोलियो एंड देन डेबिट कॉलम and the credit column, okay। now सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट इफेक्ट, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे आपको बतानी है इट अबाउट द अमाउंट कॉलम,
ओके जब आप डेबिट में लिख रहे हो सो वो जो अमाउंट आपका है वो डेबिट कॉलम में आना चाहिए, ओके डेबिट साइड में। अब जब आप क्रेडिट लिख रहे हो सो वो अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में, क्रेडिट कॉलम में आना चाहिए। एंड आप देख रहे होंगे जब मैंने अमाउंट को जब जो अकाउंट को डेबिट किया उसके अकाउंट को डेबिट साइड में लिखा, एंड जब मैंने उसे क्रेडिट किया वो दूसरे अकाउंट को, सो मैं मुझे उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना होगा, okay, and always whenever you are writing journal entry you have to give a concise reason for the same. That concise reason for the journal entry is called narration, and narration always start with the word be. अभी तक हमने जो भी जर्नल एंट्री हमने किया है उसी का एक एग्जाम्पल मैंने जर्नल फॉर्मेट में लिख के आपको बताया है, क्योंकि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन में डेट नहीं मिली थी इसलिए मैंने डेट का कॉलम ब्लैंक रखा हुआ है। पर्टिकुलर्स में आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा था परचेज गुड्स, ओके सो परचेज गुड्स का जो हमें जर्नल एंट्री मिला था दैट वाज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके सो यहाँ पे मैंने जब परचेज लिखा सो मैंने परचेज का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है। एंड जब मैंने आप देख सकते हो कि मैंने बराबर प्रॉपरली उसको डेबिट साइड में लिखा हुआ है। जब मैं कैश लिखूंगी कैश इज कमिंग इन द नेक्स्ट लाइन, सो दैट कैश अकाउंट बिकॉज द कैश इज क्रेडिटेड यू विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, और उसे आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अगर आप सेम लाइन में लिखते हो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो दैट विल बी रॉन्ग, ओके सो इसलिए आपको इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री लिखना है। एंड उसके बाद आप देखोगे आपका नरेशन, सो यहाँ पे नरेशन आपको स्मॉल जो कि आपको ट्रांजैक्शन में ही मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने नरेशन लिखा है बीइंग गुड्स परचेज, सो ये आपका फॉर्मेट था जर्नल एंट्री का। सो जो भी आपने अभी तक जर्नल एंट्री लिखा है हमने जो भी जर्नल एंट्री ड्राइव की है उसे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री डिराइव करेंगे एंड किस तरह हम उसको फॉर्मेट में लिखेंगे। एंड फॉर्मेट में लिखने के साथ साथ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें उस जर्नल एंट्री के साथ उसका नरेशन भी लिखना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमेशा नरेशन के साथ लिखी जाती है। नरेशन इज always start with the word be, okay so here we have completed our explain here we have completed journal entries, how to write the journal entry and how to record the same into the format.